Good morning students. Yesterday we have seen data sharing approaches. So here we have seen total 4 scopes: request, session, application and page. Now we will see examples of this scope. Okay. Now first one is request based data sharing. So how data sharing is done with the help of request scope. Yes. So here first, whenever the data sharing is done with request scope in a Servlet. Yes. So at that time, which kind of coding is we are writing in our Eclipse. So we will see, and then how in JSP this request based data sharing is done. So we will see. Okay, so first we will see how it is done in Servlet. So see here, syntax is given to you. See here, request dot set attributes, key value pair is given in a Servlet example. Yes. So with the help of request object, why we are using request object? So here we are requesting to set the data, to set the attribute value. Yes. So here with the help of request object, we are calling set attribute method, and in bracket we are using parameters. These parameters are key value pair parameter. Yes. Now with request or dispatcher interface, why we are using request dispatcher interface? This interface is useful for our request to dispatch data from servlet, from server with the help of servlet. ठीक है, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करते हैं. सो हियर वी आर यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस. Yes, and here we are using, or we are creating object. Okay, then with the help of request object we are using get request dispatcher method, and whatever the page we want to call, that page path is written here. So here page path is written here. From web INF, our JSP page is stored, yes, in a web INF directory. So here, so simply write down in a double quote whatever the JSP page you are using, so that path is given to here. Now we are forwarding that data. So dispatcher, with the help of dispatcher object we are using forwarding method, and we are passing request and response object. So this coding is helpful in Servlet when data sharing is done with the help of request scope. Now in a JSP 1.2 वर्जन, ठीक है, ये पहले का वर्जन है, तो इसमें कैसे यूज़ होता है? तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप JSP यूज बिन एक्शन टैग्स का यूज़ करते हैं तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है, ID, टाइप, क्लास, स्कोप. यस, तो यहाँ पे ली है कि ID इज इक्वल टू की, मतलब आपको जो नाम रखना है वो लिख सकते हो आप. टाइप इज इक्वल टू जो पैकेज का नाम है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो आप पास करते हो. ठीक है, मतलब किस टाइप के डेटा टाइप का यूज़ करना चाहते हो तो वो टाइप में आएगा. स्कोप में तो आपका स्कोप कौन सा है? तो रिक्वेस्ट स्कोप है, तो इसीलिए आपको लिखना है स्कोप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट. ठीक है, फिर क्या करना है, आप गेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो. नेम इज इक्वल टू किन, मतलब यहाँ पे नेम में आपको जो ID है वो पास करना है. सपोज आपने ID लिया ABC या 1 2 3, तो वो आपको यहाँ पे पास करना है. प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सम प्रॉपर्टी. यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, जो भी आपने जो वेरिएबल लिए है उस वेरिएबल के जो नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी में. ठीक है, ये कोडिंग है JSP 1.2 का. बट अगर आप JSP 2.0 वर्जन यूज़ करते हो तो उसमें सिंपली क्या लिखना है, $, की डॉट सम प्रॉपर्टी. मतलब सपोज की है ABC, सो ABC डॉट आपको नेम फैच करवाना है तो ABC डॉट नेम, बस ऐसा ही आपको लिखना है. कहाँ पे? JSP 2.0 में. इसके सारे प्रोग्राम्स हम प्रोग्राम सेक्शन में देखेंगे. ठीक है,
ओके, तो JSP 2.0 में हम ऐसा करते हैं. नाउ वी विल सी नेक्स्ट स्कोप. ओके, सेशन बेस्ड डेटा शेयरिंग. अब जब आप डेटा शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो सेशन स्कोप के थ्रू आप कैसे करोगे, ठीक है. तो यहाँ पे जब आप सेशन स्कोप का यूज़ करते हो, तो सेशन स्कोप के लिए आपको HTTP सेशन क्लास का यूज़ करना पड़ेगा. तो HTTP सेशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे जो नाम लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने सेशन नाम लिखा है, ठीक है. HTTP सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट. वैसे ही एक की वैल्यू पैर, यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियसली जो कोडिंग देखा था वही सेम है, ठीक है. जस्ट आपको क्या करना है, अगर आप सेशन स्कोप का यूज़ करते हो तो आपको HTTP सेशन क्लास का यूज़ करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप गेट सेशन मेथड को यूज़ करते हो, मतलब कॉल कर पाते हो, ठीक है. यहाँ से सिर्फ ये लाइन एक है वो चेंज है, बाकी एज इट इज़ है, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है. अब JSP 1.2 में क्या करना है, तो सेम है सिंटेक्स, जस्ट आपको स्कोप इज इक्वल टू सेशन लिखना है. और JSP 2.0 में क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, $key.sum प्रॉपर्टी मतलब abc.name. तो इस तरह से आप सेशन है तो वो सेशन के थ्रू डेटा शेयरिंग कर सकते हो. अब यहाँ पे बोला कि सेशन बेस्ड डेटा शेयरिंग में थोड़ा वेरिएशन है. किस टाइप का वेरिएशन आ सकता है, तो हम देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज रीडायरेक्ट टू पेज इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग टू इट, ठीक है. हमें हो सके तो हम जो पेज है उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे बट रीडायरेक्ट करेंगे, मतलब दूसरी जगह पे आप रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है. तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखा है कि यूज़ रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट. आपको इस मेथड का यूज़ करना है, ठीक है, ना कि इस मेथड का, ठीक है. कौन सी मेथड आपको यूज़ करनी है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट है डिस्टिंक्शंस विथ सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है. अब आप इसका यूज़ कर रहे हो तो क्या करना है आगे, तो यूज़र सीज JSP URL, यूज़र सीज ओनली सर्वलेट URL विथ रिक्वेस्ट डिस्पैचर कॉलन द फॉरवर्ड, ठीक है. तो यहाँ पे यूज़र को क्या करना है, JSP URL देखनी है, नहीं कि ये देखनी है, ठीक है. 2 राउंड ट्रिप्स टू क्लाइंट ओनली 1 विथ फॉरवर्ड, ठीक है. अब यहाँ पे 2 राउंड ट्रिप टाइम टू क्लाइंट मतलब क्या है, यहाँ पे कि यूज़र है वो सिर्फ JSP की URL देख सकता है. अब यहाँ पे पेज है वो रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है. रीडायरेक्ट मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह फिर से वो रीडायरेक्ट करते हो. फॉरवर्ड का मतलब कोई नए पेज में ही आप फॉरवर्ड करते हो, ठीक है. अब यहाँ पे बोलते हैं कि जब आप जो JSP पेज है, ठीक है, उस पर आप रीडायरेक्ट करते हो तो यहाँ पे 2 राउंड ट्रिप्स टू क्लाइंट मतलब क्लाइंट को डेटा मतलब 2 बार है वो डेटा यहाँ पे सेंड होता है. 2 राउंड ट्रिप टाइम मतलब एक राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या है कि जैसे कि ब्राउज़र ने सर्वर को डेटा सेंड किया और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया, तो मतलब एक पूरा चक्कर लगा के आ जाता है, दैट इज़ 1 राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है. यहाँ पे ऐसा बोला कि 2 राउंड ट्रिप्स का यूज़ होगा, मतलब 2 बार क्लाइंट को है वो डेटा है वो सेंड करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे एक बार चक्कर लगा के आया फिर दूसरी बार, ठीक है. ओनली 1 विथ फॉरवर्ड. अब यहाँ पे जब आप फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करते हो तो एक ही टाइम में डेटा सेंड हो जाता है, ठीक है. एक ही राउंड ट्रिप टाइम में डेटा सेंड हो जाता है. यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट को 2 बार राउंड ट्रिप टाइम करना पड़ेगा, मतलब डेटा सेंड करना पड़ेगा. अब यहाँ पे ये रीडायरेक्ट मेथड का एडवांटेज क्या है, ठीक है. सो यूज़र कैन विजिट JSP पेज सेपरेटली, ठीक है. यूज़र है उसको JSP पेज है वो सेपरेटली अगर विजिट करना है तो वो कर सकता है. यूज़र कैन बुकमार्क JSP पेज, उसको बुकमार्क करना है तो भी कर सकता है. तो ये 2 उसके एडवांटेज हैं. अब डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज होंगे तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है. तो पहला तो ये 2 राउंड ट्रिप टाइप वाला, ठीक है. सो 2 राउंड ट्रिप्स टू द सर्वर इज़ मोर एक्सपेंसिव.
एक ही रिक्वेस्ट 2 बार सेंड करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव है, मतलब उतना सर्वर है वो, मतलब नेटवर्क है वो बिजी रहता है, ठीक है। सेकंड क्या है, सिंस यूजर कैन विजिट JSP पेज विदाउट गोइंग थ्रू सर्वलेट फर्स्ट, ठीक है। क्या है, यहाँ पे यूज़र क्या करते हैं, सर्वलेट पे मतलब जाए बिना ही वो JSP पेज को है वो विजिट करता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बीन डेटा माइट नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। तो बीन डेटा की यहाँ पे अवेलेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सर्वलेट पे जाता ही नहीं है, बीन है, ठीक है। बीन क्लास का यूज़ कहाँ पे होता है, सर्वलेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। तो ये दो उसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप कंटेक्स्ट, सर्वलेट कंटेक्स्ट बेस्ड डेटा शेयरिंग करते हो, ठीक है। तो किस तरह से है, तो सिंपली आपको यह सर्वलेट में दिखा है कि आप सिंक्रोनाइजेशन से कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली कि गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट मेथड के थ्रू आपने सेट एट्रीब्यूट मेथड है वो कॉल करो है, की वैल्यू पेयर है। की वैल्यू पेयर मतलब क्या, यूज़र का नाम है यूज़र और उसका नाम है मेघा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी यूज़र, उसकी वैल्यू क्या है, तो मेघा, ठीक है। तो दैट इज़ की वैल्यू पेयर, ठीक है। ये सेम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड के थ्रू JSP पेज है उसको यहाँ पे क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। सेम डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पे करते हो। सिंपली यहाँ पे JSP 1.2 में यूज़ करते हो तो एज इट इज़ है, जस्ट यहाँ पे स्कोप इज इक्वल टू एप्लीकेशन लिखना है, बाकी JSP 2.0 में एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि फॉरवर्डिंग फ्रॉम JSP पेजेस से हम फॉरवर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से, तो सिंपली यहाँ पे आपको दिखाया है कि JSP की टैग्स में दिखाया है कि स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग का क्लास लिया है, एक वेरिएबल दिया है डेस्टिनेशन, इफ़ मैथ डॉट रैंडम ग्रेटर देन 0.5, मतलब जो रैंडम वैल्यू जो दे जिसके 2.25 पीछे की जो 0.25 आती तो मतलब वो अगर ग्रेटर देन है 0.5 से तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे इस पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि JSP फॉरवर्ड टैग का यूज़ करके पेज इज इक्वल टू यहाँ पे पेज का नाम, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन मतलब क्या कि पर्टिकुलर यहाँ पे आप पेज लिखते हो, जैसे कि home.jsp, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो home.jsp, यस, तो वो हुआ। अब यहाँ पे लीगल बट बैड आइडिया क्या है, सो बिजनेस एंड कंट्रोल लॉजिक बिलोंग्स इन सर्वलेट। अब जो लॉजिक है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक एंड कंट्रोल लॉजिक मतलब जो MVC स्ट्रक्चर है वो आता है सर्वलेट में। कीप JSP फोकस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब व्यू करना है तो हमें JSP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सर्वलेट का यूज़ करो, सिर्फ JSP का यूज़ करो, बट व्यू करने के लिए हमें JSP पेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूडिंग पेजेस, यस। तो इंक्लूडिंग पेजेस में क्या है, विथ फॉरवर्ड मेथड न्यू पेज जनरेट्स ऑल आउटपुट, ओरिजिनल पेज और अदर पेजेस कैन नॉट जनरेट एनी आउटपुट, ठीक है। हम फॉरवर्ड मेथड का यूज़ कर, इंक्लूड पेजेस मतलब क्या, आपको पता है JSP इंक्लूड पेज इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कि आप कोई पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो न्यू पेजेस जनरेट्स ऑल आउटपुट, ठीक है। नया पेजेस जो है वो जनरेट करता है आउटपुट, बट ओरिजिनल पेज या अदर पेज है वो आउटपुट जनरेट नहीं करता है विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड मेथड। इंक्लूड मेथड में क्या है, आउटपुट कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीपल पेजेस। जब आप इंक्लूड का यूज़ करते हो, इंक्लूड टैग का, ठीक है, तो मल्टीपल पेजेस है वो मतलब कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीपल पेजेस, आउटपुट है वो मल्टीपल पेजेस, कोई भी पेज हो, ठीक है, तो उससे आउटपुट जनरेट होता है। ओरिजिनल पेज कैन जनरेट आउटपुट बिफोर एंड आफ्टर इंक्लूडेड पेज, ठीक है। इंक्लूड पेज के पहले या इंक्लूड पेज के बाद है वो ओरिजिनल पेज है वो आउटपुट है वो जनरेट करता है। यहाँ पे दो एप्लीकेशंस दी है कि पोर्टल लाइक एप्लीकेशन है या सेटिंग कंटेंट टाइप फॉर आउटपुट, ठीक है, तो उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जब आप फॉरवर्ड मेथड इंक्लूड मेथड का आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि
आप फॉरवर्ड का यूज़ मेथड का यूज़ करते हो तो आउटपुट क्या आता है, इंक्लूड मेथड का यूज़ करते हो तो आउटपुट क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप मतलब डेटा आपको टेक्स्ट में चाहिए। 3 वेरिएबल्स दिए, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल। कंडीशन दिए कि अगर कोई कंडीशन है, सिंपली यहाँ पे लिखा है कि इफ़ सम कंडीशन, तो फर्स्ट टेबल में जो डेटा है, ठीक है, फर्स्ट मतलब ये जो है, ठीक है, फर्स्ट टेबल में मतलब ये जो स्पोर्ट्स कोड डॉट GSP वाला है वो फर्स्ट टेबल में स्टोर करते हैं, इसका सेकंड टेबल में, वेदर का थर्ड टेबल में करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस के थ्रू हम गेट इंटरफेस डिस्पैचर मेथड का यूज़ करके हम मतलब ये अगर ये नहीं होता है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम हीडर डॉट GSP की फाइल है वो क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे, मतलब उसका आउटपुट है वो हमें जनरेट होगा। ठीक है, डिस्पैचर डॉट इंक्लूड मेथड से, अब यहाँ पे ये कोई इंक्लूड मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नहीं होता है तो हेडर फाइल जनरेट होगी, फर्स्ट टेबल है। ठीक है, तो जब आप ये आउटपुट मतलब ये प्रोग्राम रन करोगे ना तो आपको प्रॉपर आइडिया आएगा कि किस तरह से आउटपुट है वो आता है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, ठीक है, और फिर नीचे जो फुटर है तो वो फुटर भी यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज कल हमने पढ़ा ही था। ठीक है, तो सिंपली आप जो MVC के ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मेन ड्रॉबैक इज़ फाइनल स्टेप प्रेजेंटिंग द रिजल्ट इन GSP पेज। MVC का मेन ड्रॉबैक है कि वो जो डेटा है वो GSP पेज में रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, आपने प्रोग्राम जो बनाया है सर्वलेट वाला, ठीक है, तो पर्टिकुलर आप जब पेज रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो डेटा है वो मतलब डायरेक्टली जो आउटपुट है वो GSP पेज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे GSP यूज बिन एंड GSP गेट प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ होता है, तो नॉट हैंडी टू यूज़, एक्चुअली प्रॉपरली उसका यूज़ हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सेस बिन सब प्रॉपर्टी, बिन की सब प्रॉपर्टी का हम एक्सेस नहीं कर सकते। GSP स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, सो रिजल्ट इन हार्ड टू मेंटेन कोड। ठीक है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स का आपने यूज़ किया तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम उसका कोड है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, गोल हमारा क्या है, सो मोर कंसाइज एंड रीडेबल सिंटैक्स। ठीक है, हम इजीली मोर कंसाइज मतलब सिंटैक्स हमारी छोटी होना चाहिए, फटाफट हम एक्चुअली रीड करके हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो मतलब जो एक्सेसिबल टू वेब डेवलपर, ठीक है, जो वेब डेवलपर है तो उनको वो एक्सेस कर सके। ठीक है, एबिलिटी टू एक्सेस अब प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सके। एबिलिटी टू एक्सेस कलेक्शंस, कि उसका जो एक्शंस यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स है वो सारे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स का यूज़ हम प्रॉपरली कर सके। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये हमने एक्चुअली कल पढ़ ही लिया था। ठीक है, एडवांटेज भी हमने एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज के यहाँ पे एडवांटेज दिया है कि कंसाइज एक्सेस टू स्टोर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर बिन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बिन प्रॉपर्टीज़ के छोटे छोटे नोटेशंस का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल एक्सेस टू कलेक्शन एलिमेंट्स। ठीक है, ये कल हमने ये सारे देख लिए थे, ये भी देख लिए थे। ठीक है, डायरेक्टली आते हैं इन्वोकिंग EL। ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज को हम कैसे इन्वोक करेंगे, कैसे उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एलिमेंट्स कैन अपीयर इन ऑर्डिनरी टेक्स्ट और इन GSP टैग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो सिंपल टेक्स्ट में या GSP टैग एट्रीब्यूट्स में हम वो दिखाई देते हैं, उसका यूज़ हम उसमें करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से, तो सिंपल आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ठीक है, नेम ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज है ये वाली। ठीक है, सो $साइन का यूज़ करना है, जो भी एक्सप्रेशन लिखना है वो एड्रेस एक्सप्रेशन टू। ठीक है, GSP इंक्लूड टैग। ठीक है, यहाँ पे अगर GSP टैग एट्रीब्यूट्स में यूज़ करना है तो यहाँ पे हमने
GSP इंक्लूड टैग का यूज़ किया है, पेज इज इक्वल टू पर्टिकुलर पेज का नाम मतलब डॉलर साइन और एक्सप्रेशन हमें देना है, तो वो पेज है वो एक्सेस होगा। ठीक है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज इन टैग एट्रीब्यूट्स, तो सिंपली ये है वो टैग एट्रीब्यूट्स ही है। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ किया है, देखो यहाँ पे डॉलर साइन एक्सप्रेशन 1, फिर ABC XYZ डॉलर साइन एक्सप्रेशन 2। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज़ किया है। एक्सेसिंग स्कोप वेरिएबल्स। ठीक है। स्कोप वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, डॉलर साइन और वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है। तो वो पेज कंटेक्स्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सेशन, सर्वलेट कंटेक्स्ट, ठीक है, उस सारे जो स्कोप वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसको वो सर्च करेगा और आउटपुट है, ठीक है, वो एज अ ऑब्जेक्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिया है कि डॉलर साइन नेम, ठीक है, यहाँ पे HTML की टैग्स में लिखा है कि इज इक्वल टू पेज कंटेक्स्ट, ठीक है, इसका डॉट फाइंड एट्रीब्यूट, पर्टिकुलर कोई एट्रीब्यूट हमें फाइंड करना है तो उसका जो पैरामीटर नेम है वो हम यहाँ पे पास करेंगे और फिर क्या कर देंगे हम बीन प्रॉपर्टी का यूज़ करके ID इज इक्वल टू नेम, मतलब जो ID आपको लिखना है वो, ठीक है, तो यहाँ पे नेम लिखा है, टाइप इज इक्वल टू दिस एंड क्लास इज इक्वल टू दिस। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर नेम है वो डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि एक क्लास क्रिएट किया है, उसका नाम है स्कोप वेरिएबल्स। ठीक है। तो HTTP सर्वलेट की फंक्शनैलिटी इनहेरिटेट करने के लिए यहाँ पे उसको कॉल किया है एक्सटेंड करके, गेट मेथड का यूज़ किया है। ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट 1 और उसकी वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है। सेशन क्लास का यूज़ किया है, गेट सेशन किया है। ठीक है। फिर एप्लीकेशन, यहाँ पे जो सारे स्कोप वेरिएबल्स है वो सबका यूज़ यहाँ पे किया है। ठीक है। तो यहाँ पे सबका यूज़ किया है, रिक्वेस्ट है, सेशन है, सर्वलेट कंटेक्स्ट है, यहाँ पे डेट है तो डेट यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है, तो सिंपली उसका डेट का जो स्ट्रक्चर है तो वो पूरा लिखा है। ठीक है। फिर पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू उसको गेट करवाया है इस पेज को sv.jsp को। ठीक है। ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज के थ्रू ये एट्रीब्यूट्स है वो डिस्प्ले करवाए हैं। ठीक है। एक्सेसिंग बीन प्रॉपर्टीज, तो बीन प्रॉपर्टी हमने कल देख ली थी। ओके। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट ऑफ डॉट एंड एरे नोटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे एरे नोटेशन, इक्विवेलेंस ऑफ डॉट एंड एरे नोटेशन, तो यहाँ पे दोनों की सिंटेक्स दी है कि अगर डॉट नोटेशन मतलब ये नेम डॉट प्रॉपर्टी, एरे मतलब नेम और ब्रैकेट में दिया है यहाँ पे प्रॉपर्टी, मतलब जब एक से ज़्यादा वैल्यू है तो उसको आप एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। रीज़न फॉर यूजिंग एरे नोटेशन, एरे नोटेशन का यूज़ करने का रीज़न क्या है, तो अगर कोई एरे है मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ है, लिस्ट है या कोई ज़्यादा कलेक्शन है, ठीक है, कि सी अपकमिंग स्लाइड मतलब बहुत सारे स्लाइड में वो डेटा है, तो उसके लिए हम एरे नोटेशन का यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी नेम एट ए रिक्वेस्ट टाइम। ठीक है। तो हमें जो भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या कि आपने जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिए, सपोज आपने 10 वेरिएबल्स डिफाइन किए कि नेम, नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ को आपको डिस्प्ले करवाने के लिए एट रिक्वेस्ट टाइम, तो रिक्वेस्ट टाइम में डिस्प्ले करवाने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है। नेम 1 मतलब यहाँ पे सिंपली नेम 1 और नेम 2। ठीक है। तो यहाँ पे नो कोड्स अराउंड नेम 2 मतलब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये एरे का नाम है। ठीक है। टू यूज़ नेम दैट आर इनलीगल, ठीक है, ये इनलीगल है मतलब अंदर इस तरह से आप डैश या डॉट का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। सिंपली कैसे कलेक्शन को एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन लैंग्वेज के थ्रू आपने जो एरे का कलेक्शन है, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो वेरिएबल का नाम है और उसका जो प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, तो ऐसे एरे डॉट इक्विवेलेंट टू एंट्री नेम मतलब पर्टिकुलर जो भी नंबर ऑफ डेटा है वो एक प्रॉपर्टी के थ्रू आप फेच करवाना चाहते हो। ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पे लिखा है।
वर्क्स फॉर एरे डॉट इक्विवेलेंट टू, मतलब एरे से आप इंडेक्स है वो एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। लिस्ट डॉट इक्विवेलेंट टू, तो आप लिस्ट डॉट गेट करके उसकी इंडेक्स है, ठीक है, तो आप गेट मेथड का यूज़ करके मैप डॉट इक्विवेलेंट मैपिंग करवाना है तो द मैप डॉट गेट मेथड के थ्रू आप उसका की नेम है वो फैच करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हैश मैप का इसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है, तो ये भी हमने कल दिखा था, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है यूनिट नंबर 5, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।